ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو خانیوال سے خبر دیں گے، جہاں پر شہر کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جلیل عمران نے اپنے آفس میں کھلی کچہری لگائی۔ مزید جانتے ہیں اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ وہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے عامر نصیر۔ جی عامر نصیر، بتائیے گا تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، خانیوال کے شہری کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جلیل عمران نے اپنے آفس میں کھلی کچہری لگائی، جس پہ ضلع بھر سے آئے سائلین کی درخواستوں کی سماعت کیا۔ تو بات کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سر، بتائیے گا کہ سب سے پہلے میٹرو ون نیوز سے آپ کو خانیوال میں ویلکم کرتے ہیں۔ اپنے کھلی کچہری لگائی، اس والے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو بہت شکریہ۔ یہ کھلی کچہری ہمارے پولیس آفیسرز کے روٹین کا میٹر ہے۔ یہ ہمارے آئی جی صاحب کی ہدایات، ہمارے آر پی او صاحب کی ہدایت کے مطابق تمام ڈی پی اوز جو ہیں وہ اسی طرح ہمارے ایس ڈی پی اوز وہ کھلی کچہری کرتے ہیں، تاکہ سالین کو جو بھی پرابلمز ہیں ڈائریکٹلی آئیں، ہمیں بتائیں، اور جن کو ہم ریزالو کر سکتے ہیں فوری طور پہ کریں۔ جہاں جہاں ہدایات دینی ہیں وہ دیں، تاکہ پبلک کو کوئی بھی جو بھی مسئلے مسائل درپیش ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔ سر یہ بتائیے کہ کتنے درخواستوں کی آپ نے تقریباً سماعت کی ہے؟ اس وقت تقریباً میں نے کو 10 سے 12 کے قریب جو ہے نا اپلیکینٹس تھے، ان کو میں نے اٹینڈ کیا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جلیل عمران کا یہ کہنا تھا کہ 10 سے زیادہ درخواستوں کی سماعت کی ہے، اور کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو شہریوں کو، وہ میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں، وہ کسی ٹائم بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ جی اب رخ کرتے ہیں لاہور کی طرف، جہاں نجی فورم کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا اور شہر بھر کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیات نے تقریب میں شرکت کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سینئر کنسلٹنٹ فائنانس احسان بٹالوی، اینکر پرسن راشد حجازی، سپریم کورٹ بار کے سابق جنرل سیکرٹری محمد اسلم زار، ایڈوکیٹ اینکر پرسن کاشف بشیر خان، اینکر پرسن اقبال شاہد، حابر شبیر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منیر احمد بھٹی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، مدثر حسن آدم صدر تاجران، عابد مارکیٹ حاجی امتیاز صاحب، سابق امیدوار قومی اسمبلی آر جے سمن عروج، آر جے ہاجرہ شیخ، ٹورزم ایکسپرٹ شازیہ فیاض اور ماہر تعلیم مسز حامد شبیر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل بیورو چیف پنجاب میاں عثمان سے چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب سے کیا بات ہوئی، آئیے چلتے ہیں۔ جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چیئرمین اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ یہ ایک پاکستان کی معیشت کو سب سے بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک سلیوشن پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم سب فکر مند رہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی کشتی ڈاواں ڈول ہے، نا امیدی سی ہے کہ یہ جو قرضے اتنے ہمارے قوم پہ چڑھ گئے، یہ کیسے اتریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ نا امیدی کی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس قوم میں بڑی جان ہے، بڑا دم ہے۔ اس قوم نے انگریز سے آزادی لی، ہندو سے آزادی لی، اس قوم نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، اور بھارت جیسے ملک کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ناکوں چنے چبائے، تو بہت بڑی قوم ہے یہ۔ تو قرضوں کا معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ ہم نے کچھ دوستوں نے، کچھ معیشت کے ماہرین نے، کچھ اور لوگوں نے ایک مل کر ایک ایسا ایک نظام اور ایک ایسی اسکیم بنائی ہے جس کے ذریعے سے ہم اندرونی طور پر اپنے پاکستانی بھائیوں کے ذریعے سے ہی اس قرضے کو اتار سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کے اوپر مزید کام کر رہے ہیں، اس کی قانونی اور اس کی بینکنگ کی مختلف جو پہلو ہیں اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہت بڑی تحریک کے ساتھ یہ کام شروع کریں گے، جس میں آپ لوگ ہمارا ساتھ اگر دیں گے تو یہ $3 بلین، $4 بلین یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر صدق کے دل سے اور خدا کے بھروسے پہ کام نکلے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ کوئی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ سر اس کی امپلیمنٹیشن کو کتنا ٹائم درکار ہوگا؟ نہیں، میں نے تو ابھی عرض کیا نا کہ ابھی ہم اس کی اسٹریٹجائز کر رہے ہیں، ڈیزائن کر رہے ہیں، تو مہینہ 2 مہینے لگیں گے۔ اس کے بعد ہم نکلیں گے گلی کوچوں میں، گھر سے نکلیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ جی یہ تھے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، اخوت کے چیئرمین ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم چند ہی سالوں میں بلینز ڈالر عوام سے اکٹھا کر کے پاکستان کے قرضے اتارنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ جی حالیہ بارشوں کے باعث ملک کے دیگر شہروں کی طرح گجرانوالہ میں بھی مانسون کی بارشوں نے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے۔ شہر کے مختلف مضافاتی علاقوں میں نکاسی آب کا نظام نہیں ہے، اور اسی وجہ سے دریا کا منظر پیش کرتی روڈز نظر آتی ہیں۔ اس حوالے سے جانتے ہیں گجرانوالہ سے بیورو چیف میٹرو ون نیوز محمد ندیم ڈار کی اس رپورٹ میں۔
हालिया बारिशों के बायस मुल्क के दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी मानसून की बारिशों ने मामूलाती जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर रखा है। शहर के मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाकों बिलखुसूस सियालकोट बाईपास से रूम मोड़ और अब्दाल मोड़ से दाल चौक तक का इलाका निकासी आब का इंतजाम न होने की वजह से दरिया का मंजर पेश कर रहा है। गंदा पानी मुसलसल खड़ा रहने की वजह से रोड टूट फूट का शिकार है और आए रोज हादसा का सबब बन रहा है। ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੋ ਬੀਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਪਈ ਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਸੁੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਏ ਯਾਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਡਿੱਗ ਪਈ ਏ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਏ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਏ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਅਸਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇ ਬਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। अहले इलाका अब्दाल नहीं सादक चीमा हाजी मोहम्मद यूनस नासर चीमा इरफान साहिब बाऊ रियाज मुश्ताक चीमा अब्दुल हफीज राजपूत इकबाल विरक मोहम्मद बशीर राजपूत ने कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन मंसूर कादर डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सारा उमर से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन फाद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज, गुजरांवाला। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा, पीडीएमए ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। जिला इंतजामिया ने 104 मवाजियात को खाली करवाने के लिए फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। दरियाए चनाब पर हमारे नुमाइंदे मौजूद है, मजीद जानते हैं राय मोहम्मद इब्राहिम से। जी राय मोहम्मद इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे के खिलाफ का सैलाब का खतरा है और मैं आपको ये बताता चलूँ जिला इंतजामिया की जानिब से 104 मवाजात को खाली कराने के लिए मस्जिदों में ऐलान कर दिए गए हैं और यहाँ के मकामी लोग हैं पेट के इलाके के वो अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर पहुँच रहे हैं और जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप भी कैम्प कर दिया गया है। और मैं आपको ये बताता चलूँ जो बेट के इलाके हैं, नशेबी इलाके हैं, दुआबा है, चक्रुहाड़ी, वहाँ पे बस्तियों में पानी दाखिल हो चुका है और लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं और वहाँ पे लोगों के लिए उनके जानवरों के लिए चारा तक नहीं है। जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप भी तो कैम्प कर दिया गया है लेकिन उन जो सैलाबजदगान है उनका कोई माली इमदाद नहीं दी जा रही। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर डेरा से अपील की है कि खुदारा उनके लिए ग़िज़ाई जानवरों के लिए ग़िज़ाई चारा और जो वहाँ पे मकीम लोग हैं उनके पास जो है राशन वगैरह के लिए भी उनके पास अशिया खुर्दनोश के खाने के लिए भी चीज़ें नहीं हैं। उन्होंने अपील की है कि जिला इंतजामिया को कि उनके लिए खादरगाह को इंतजामात किए जाएं। जी तहसील जतोई के नवाही इलाके शहर सुल्तान दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से 20 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुकामी फ़र्द अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हुज़ैफा आरबी की इस रिपोर्ट में। दरियाए चनाब में शहर सुल्तान के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होते ही नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है। कपास की फसल और जानवरों का चारा मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। इलाका मकीन अपना सामान लेकर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। हुकूमत की तरफ से ताहाल इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोई इंतजाम नहीं किए गए। हर से बुढ़ी लोड़ी खरे से हर शे बोट लोड़ के माल ढांडे बस फसला शसला कपास पास जीरी शहरा दे हर शे बोट की शेकड़ी बाल बच्ची बांधते घंटे है बेटू भुख मरते पे हफ्ता थी गए ही टाइम तक इमदाद की कार्रवाई साकू नहीं मिली गई। शेकड़ी सारे बाल भुख मरते माल ढांडा साडा ओज मर गए। दरिया से ना लगते सारे घर बार ढाए गए अपने बंदा था पिता के राय बैठो हालात है ना कहना इतना कोई पूछण गुछण वाला आया कोई नहीं इतना ना कोई तंबू है ना कोई कहना है ना कोई पूछण वाला है ना गुछण वाला है। अर्ज है कोई मेहरबानी करो कोई साले को पूछण गुछण वाला है अगर तौफीक अदा फरमाओ। शहर सुल्तान के लोग अब भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मोहम्मद हुज़ैफा आरबी, मेट्रो 1 न्यूज, जतोई। झंग के मकाम से सैलाबी रेला गुजर रहा है। 7 रोज तक जारी रहने वाले दरिया चनाब में पानी की सतह में कमी आना शुरू हो गई है। सैलाब में घिरे मकामी अफराद जिला इंतजामिया से नाखुश दिखाई देते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं झंग से इमरान अंसारी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 7 रोज तक जारी रहने वाले दरियाए चनाब में पानी की सतह में कमी वाक़या होना शुरू हो गई है।
इस वक्त भी तरीमू हेडवर्क्स के मुकाम पर 1,12,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जारी है, जबकि 7 रोज पानी रहने से कच्चे मकानात भी जमीन दोज हो गए हैं। 7 रोज तक रहने वाले आबादी मुकीम अफराद से जानते हैं इनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना रहा और इंतजामिया की जानिब से अब तक इनको क्या सहूलियात फराम की गई हैं। माफी देव इतना मच्छर होता है ना, एडा मोटा डेंगू, पता नहीं इंसान रात गुजारते कैसे। और दूसरा इस तरह वैसे मकान खाली करते चले जाइए ना, सारे सामान है इनको कितने 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 जाइए, 2-3 दिन तो होता मसला। उस दूसरी बात ये है तो कोई इंतजामिया तरफ कोई फ्लड रिलीव या कोई इमदाद, सिर्फ 1122 आए बैठे हैं, बनते 2-4 आदमी, और कोई ना महकमे माल वाले आए हैं, ना कोई डीसी की तरफ कोई रिलीव आया है, ना कोई अलर्ट आया है। वबाई हर अवाम कितने घर बड़े, हर घर से 2-3 आदमी निकलते होंगे, हर 5-6 आदमी हर घर में रह रहे हैं। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, उनका यही कहना है कि बिजली का निज़ाम ना होने से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मुख्तलिफ आबादियों में रहने वाले हज़ारों अफराद जो हैं वो यहाँ पर मुकीम हैं। इनके पास ना तो खाने पीने की अशिया हैं, ना जानवरों के लिए चारा दस्तयाब है। इनकी जानिब से वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है। जी, डेरा गाजी खान में हालिया बारिशों से आने वाले सैलाब ने कई कीमती जानों को निगल लिया है। रेस्क्यू 1122 की टीमें और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार इस मुसीबत की घड़ी में बर वक्त आवाम के दरमियान हैं। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं डेरा गाजी खान से हाजी सईद खान। डेरा गाजी खान में हालिया बारिशों से रोज कोयों से आने वाले सैलाब जहां कहीं से गुजरता गया, तबाही के अनमेट नकूश छोड़ता गया। कई दिल दहला देने वाले वाकयात रूनुमा हुए। बेरहम पानी ने माओं के हाथों से उनके फूल जैसे बच्चों को छीन कर ले गया। कच्चे पक्के मकानात, माल मवेशी, घरेलू सामान भी सैलाब के नजर हो गए। सैलाब से मुतासरा अफराद का कहना था सारे को कोई शय नहीं, असा सलाब विच लोड़ा है, सारे निके निके बच्चे इन हालात नाल पान थे, असा इथा बैठे थे कहीं दे हम साए सारी, ना कोई मेरा भिरा जा है, ना कोई शय कानी। असा ही में रोंदे में निके बच्चे ना साह बचा के आए पे, ना सारे को कोई खावन पीवन दी शय, ना सारे को कोई शय कानी। अल्लाह बर्बाद थी गए, सारी कशे निकली, घर बार हर शे लोड़ गया था, दाने वही लोड़ गए, खावन वास्ते कशे कानी, जेरी शाय उथाई रोड दे बड़ी दी पे, ना कैंप दे पर, ना कपड़े, ना कशे, सारियां जुतियां कानी, पैरे कंडे लगदे वेने दे कि ना सादा सामान बचे, ना कशे। हुन बाले न थियूं या सामान तो थियूं, असा तो बर्बाद थी गए। अगर बात की जाए मौजूदा बारिशों से आने वाले सैलाब ज़िंदगान की इमदादी कामों की, तो इनमें सरफराज ज़िला इंतज़ामिया रही डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार ने दिन रात एक करके सैलाब ज़िंदगान की बहाली के लिए काम जारी रखा हुआ है। दूसरी तरफ अगर बात करें सियासी नुमाइंदों की, तो इनकी कारकर्दगी मायूस कौन रही। सिर्फ MP जवेद अख्तर लोन अमली तौर पर मैदान में नजर आए। तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। टीम फिक्सर ने बेहतरीन काम जारी रखा हुआ है। साबका उम्मीदवार MP इखलाक अहमद बेडान ने भी सैलाब ज़िंदगान के लिए खुराक के साथ साथ राशन भी तकसीम करते नजर आए। सियासी और समाजी शख्सियत के अलावा सहाफ़ी भी अमली तौर पर मैदान में नजर आए, जिनमें मलिक मोहम्मद रमजान मजलूम के बाद शामिल हैं। सबका मशहूर सेहत मोहम्मद हनीफ इताफी, वफाकी वजीर मोहतरमा जरताज गुल वजीर जश्न मनाने में मसरूफ नजर आए। नौ मुंतखब MP सरदार सैफुद्दीन खोसा एक दिन की हाजिरी के लिए दौरान जिला इंतजामिया के साथ मसरूफ में रहे। सरदार अहमद अली खान दरिशा को अभी तक सैलाब का इल्म ही नहीं हुआ, वरना वो भी कहीं सैलाब ज़दगान के साथ फोटो सेशन। पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन इदारा रेस्क्यू 112 24 घंटे अवामी खिदमत में मसरूफ नजर आए। कहीं बच्चों को रेस्क्यू करते तो कहीं बुजुर्गों का सहारा बनते देखा। सैलाब ज़दगान रेस्क्यू 112 को खराज तहसीन पेश करते हुए हाजी मोहम्मद सईद गिंदी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। पोश शरीफ में दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे की वजह से जमींदारा बंद टूट चुके हैं और इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इलाके के लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। ताहल गवर्नमेंट की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप का इनेकाद नहीं किया गया। हमारे नुमाइंदा शहबाज शकरानी इस वक्त मौजा बख्तियारी में मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे की वजह से उस शरीफ के मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ चुके हैं, जिनमें मौजा बख्तियारी, शिकरानी और मक्खन बेला शामिल है। इस वक्त मैं मौजा बख्तियारी के मकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल जो है पैदा हो चुकी है। लोगों की हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं, जिन फसलों में कमाद, कपास और मूंगी की फसल शामिल है। अब पानी जो है नशेबी इलाकों की तरफ जो है दाखिल हो रहा है और लोग यहाँ के रहने वाले जो हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से
किसी किस्म के कोई इंतजामात ना किए गए हैं। और चूंकि ये दिही इलाका है, यहाँ के लोगों का गुजर बसर जो है माल मवेशी पे है, यहाँ पे महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से भी कोई कैंप नहीं लगाया गया। ताहाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नौजवानों की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप भी लगाया गया और फ्री कश्ती का भी इनाकाद किया गया है। मेरे साथ तहरीक लब्बैक के जिम्मेदार मौजूद हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा ये किस तरह से यहाँ के मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान उच्च शरीफ की तरफ से फ्री कश्ती का इनेकाद किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं दी गई और इसी वजह से कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे इलाका के जो मकीन हैं उनको मदद के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बाइक उच्च शरीफ की तरफ से यहाँ पे हमने इनको मदद दी और इंशाल्लाह आगे भी हम मज़ीद देंगे। इंशाल्लाह रिजवी मिशन जारी रहेगा। जी आपने इनकी बात सुनी, इन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप का इनाकाद किया है और फ्री कश्ती सर्विस दिया है। मेरे साथ मुतासरा इलाका वकील जो है मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे किन मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं। देखो जी सारे गाल में साडा जमीन लड़ गए फ्लड की वजह को सारे जरा ना माल भी बुढ़े वे ना सारे माल भी मरते वे ना सारे कने कोई बंदियां वाले डॉक्टर आते ना कोई ढांडियां वाले डॉक्टर आते साडी हुकूमत वक्त को है इमदाद करें साडी ते दूजा जरा ना अर्ज कि सारे कर्जे भी माफ करें, जरा कर्जे मेहरबानी की हुई। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, इनका यही कहना है कि हमारे पास किसी किस्म के कोई डॉक्टर जो है वो नहीं है और ना ही फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए, ना ही हमें फ्लड जो है वार्निंग दी गई थी। इनका कहना है कि इस इलाके को आफत ज़दा करार देकर हमारे जो ज़राई कर्जे हैं वो माफ़ किए जाएं, हम मजीद मुश्किलात का सामना नहीं कर सकते। जी तालियावाला में चंद मिनटों की बारिश से इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया है। बारिश से शहर की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से नालों की सफाई न होने की वजह से सीवरेज और बारिश का पानी शहरियों के घरों में दाखिल हो गया है, जबकि निकासी आब न होने की वजह से शहरियों को इस वक्त परेशानी का सामना है। घरों की दीवारें शदीद मुतासर हुई हैं। बारिश और सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। म्यूनिसिपल कमेटी के अमले की जानिब से नालियों की सफाई न करना मामूल बन गया है। मंडी बहाउद्दीन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फालिया में बारिश का बायस छत गिर गई है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में फालिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के वेटिंग एरिया की छत बारिश का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी और जमीन बोझ हो गई। ताहम छत गिरने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया गया है कि लाखों रुपए से तैयार की गई थी और छत फाइबर की तैयार थी, इसकी बुनियादें कमजोर होने की वजह से गिर गई। हालिया बारिशों से दरिया सिंध में पानी की सूरत हाल बेहतर हो गई है, जिसके बायस जामशोर के इलाके कोटरे बैराज के अप स्ट्रीम 1,54,636 जबकि डाउन स्ट्रीम 1,27,323 रिकॉर्ड किया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रियाज मीर की इस रिपोर्ट में। जी इस वक्त हम मौजूद हैं दरियाए सिंध के मकाम कोटरी के पास, जहां पर कंट्रोल रूम के मुताबिक अप स्ट्रीम 1,54,636 क्यूसेक बताया जा रहा है, जहां डाउन स्ट्रीम 1,27,323 बताया जा रहा है। पानी आने की खुशी में जहां रेती के ठीहे नजर आते थे ठट्ठा और सिजावल में, अब दरिया की लहरें और मौजों देखकर अवाम में काफ़ी खुशी छाई हुई है, माहिगिरों में काफ़ी खुशी छाई हुई है। माहिगिरों का कहना है कि अब शिकार होगा, जहां हम रोजी रोजगार करते हैं, मछली आने से काफ़ी हमें शिकार मिलता है। कई सालों से पानी का आना यहाँ नहीं थी, आमदरफ्त नहीं थी। अब मानसून की बारिशों की वजह से काफ़ी पानी आया हुआ है और इंडिया के पानी छोड़ने से अभी मजीद पानी में इजाफा होगा। मजीद लोगों में खुशी की लहर छाई हुई है। जी मुल्क भर की तरह शोरकोट सिटी में भी दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत पौधा लगाना है दरख्त बनाना है के स्लोगन को हासिल करने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस वक्त हमारे तहसील रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज शोरकोट मोहम्मद अरसलान कादरी वहां मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ान मदीना शोरकोट सिटी में। नाजरीन, पौधा लगाना है दरख्त बनाना है के स्लोगन के तहत FGRF दावत इस्लामी के शोबा के तहत जो है यहाँ पर शजरकारी मुहिम की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया है। इस वक्त मेरे साथ तहसील निगरान गुलाम सरवर कादरी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से हमें क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी का ये नारा है कि अपने मुल्क को हमने सरसब्ज बनाना है
اور پودا لگانا اور درخت بنانا ہے. اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان میں جو ہے شجرکاری مہم شروع ہے جو 1 اگست سے لے کر 2 ستمبر تک جاری رہے گی. آج ہم یہاں فیضان مدینہ سے اس کا جو ہے افتتاح کر رہے ہیں اور آج ہمارا ہدف ہے انشاءاللہ ہم نے 400 پودا آج لگانا ہے. پہلے فیضان مدینہ میں، پھر انشاءاللہ بلدیہ پارک میں، اس کے بعد ریکسیو آفس میں اور پھر کچہریوں میں. تو دعوت اسلامی کا یہ اپنا مشن ہے کہ اپنے ملک کو سرسبز بنانا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی جیسے حافظ بنا رہی ہے، عالم بنا رہی ہے، اسی طرح مساجد بنا رہی ہے، مدارس بنا رہی ہے. اسی طرح دعوت اسلامی الحمدللہ فلاحی کام کر رہی ہے. دعوت اسلامی زلزلہ زدگان کی مدد کر رہی ہے. دعوت اسلامی اسی طرح خون دے رہی ہے. دعوت اسلامی نے آج تک تقریباً 50,000 خون کی بوتلیں دی ہیں. اسی طرح راشن گھروں میں پہنچا رہی ہے. اسی طرح دعوت اسلامی کا ایک یہ بھی مشن ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو سرسبز بنانا ہے اور دعوت اسلامی کا یہ نعرہ ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. انشاءاللہ اپنے ملک کو سرسبز کریں گے. جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، اپنے ملک پاکستان کو جو ہے سرسبز و شاداب بنانا ہے. آپ بھی اپنا جو ہے اس میں حصہ ڈالیں تاکہ ملک سرسبز و شاداب بن سکے. جی عمر کوٹ میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام شجر کاری مہم کے سلسلے میں عوام میں شعور پیدا کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی اور پریس کلب کے سامنے کیمپ لگا کر شہریوں میں مفت پودے تقسیم کیے گئے. عمر کوٹ میں دعوت اسلامی کی جانب سے عوام میں پودے لگانے سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی ہے، جبکہ ریلی میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی ہے. دعوت اسلامی کی جانب سے پریس کلب کے سامنے کیمپ لگا کر عوام میں مفت پودے تقسیم کیے گئے. اس موقع پر دعوت اسلامی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ درخت لگانا زندگی ہے. اپنے گھروں، محلوں میں اور گلی میں درخت لگا کر اپنے شہر اور ملک کو گرین بنائیں، جبکہ درخت لگانا بہت ضروری ہے تاکہ ماحول کو سرسبز و شاداب بنایا جا سکے. اسی سلسلے میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ درخت انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. یہ آکسیجن فراہم کرتی ہے جو انسانی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی اداروں میں درپیش مسائل کے حل کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد وفاقی محتسب سیکریٹریٹ ملتان کا رخ کرنے لگی ہے. اس وقت وفاقی محتسب ریجنل آفس ملتان میں قمر جہاں موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں. جی قمر جہاں، بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں کی؟ کیا شہریوں کے مسائل حل ہو سکے ہیں یا ابھی تک نہیں ہوئے؟ ایک طرف حکومتی اداروں سے درپیش مسائل سے پریشان نظر آتی ہے، وہیں دوسری جانب کچھ حکومتی ادارے ایسے بھی ہیں جو عوامی فلاح و بہبود، عوام کے انصاف کی فراہمی کے لیے دن رات بلا تفریق اور بلا معاوضہ اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. اسی طرح میں موجود ہوں اس وقت ملتان وفاقی محتسب سیکریٹریٹ میں. میرے ساتھ موجود ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن محمود خان مہے صاحب. ان سے جانتے ہیں سر، بتائیے گا کہ عوامی جو خدمات ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں، ان کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کس قسم کی خدمات فراہم کر رہے ہیں، کس قسم کے لوگ آپ کے پاس مسائل لے کر آتے ہیں، اور ابھی تک آپ کے جو ادارے سے وہ کتنے لوگ مستفید ہو چکے ہیں؟ بہت شکریہ. اگر میں اس کو ایک جملے میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو ہم اپنے وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی صاحب کی سربراہی میں پورے طور پر لوگوں کے گم شدہ اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اعتماد جو ہمارے اداروں سے کہیں گم ہو گیا تھا کہ ہماری سننے والا کوئی نہیں ہے، تو ان کے سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، جہاں پہ بلا معاوضہ اور فوراً جہاں پہ 45 ڈیز میں ان کو ہم انصاف جو ہے ان کی دہلیز تک پہنچتا ہے. اور اس پہ لوگ اعتماد کرنا شروع ہو بھی گئے ہیں الحمدللہ. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پچھلے سال ہمیں 1 لاکھ سے زیادہ اپلیکیشنز ریسیو ہوئی تھی اور اس کو ہم نے 1,06,000 کچھ جو ہیں وہ ڈسپوز کر دی تھی. خانقاہ ڈوگرہ میں محرم الحرام میں سیکیورٹی ڈیوٹی الرٹ ایس ڈی پی او توصیف احمد خان اور اسسٹنٹ کمشنر صفدر آباد سلیمان منشا چیئرمین سردار کامران ڈوگر نے مرکزی امام بارگاہ حسینیہ اور محرم الحرام میں جلوسوں کے روٹس کا معائنہ کیا ہے. اس سلسلے میں صفدر آباد سلیمان منشا، ایس ڈی پی او توصیف احمد خان، چیئرمین سردار کامران اور ڈوگر خانقاہ ڈوگرہ یوم عاشورہ اور دیگر جلوسوں کے روٹس کا وزٹ کیا، جبکہ امام بارگاہوں اور مجالس کے داخلی اور خارجی راستوں کو چیک کیا. ایس ایچ او شاہد رفیق نے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں بریف کیا. ایس ڈی پی او نے منتظمین مجالس اور جلوس کو سیکیورٹی کے معاملات میں پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایت کی ہے. مجالس اور جلوس میں آنے والے تمام عزاداروں کو سخت چیکنگ کے بعد داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. ڈیوٹی پر مامور اہلکار ان مشتبہ افراد اور سامان پر کڑی نظر رکھیں، جبکہ تحصیل بھر میں تمام مجالس اور جلوسوں کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے.
मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान को कायम रखने के लिए जैकबाबाद पुलिस और शहबाज एयरफोर्स के जवानों ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया है। फ्लैग मार्च में सब डिवीजन सिटी और सब डिवीजन सदर के अफसरान और जवानों और शहबाज एयरबेस के जवानों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च का आगाज 15 मददगार बेस से हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों कायदे आजम रोड, फैजान मदीना रोड, डेप्यूटी कमिश्नर रोड, टावर रोड, शिकारपुर रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ 15 मददगार बेस पर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च का मकसद अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है और अवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और शरपसंद अनासर को ये पैगाम देना है कि जिला जैकबाबाद की पुलिस और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए भरपूर सलाहियत रखते हैं। मीरपुर खास की तमाम ताजिर तंजीमों की जानिब से ताजिर दुश्मन बिजली के बिलों पर लगाए जाने वाले टैक्स के खिलाफ सरापाए एहतजाज बने हुए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद खान अपनी इस रिपोर्ट में। के दीगर शहरों की तरह मीरपुर खास के ताजिर बरादरी भी बिजली के बिलों में लगाए जाने वाले टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मीरपुर खास अंजुमन ताजरान की जानिब से सदर अनीसुर रहमान, सिंध जनरल सेक्रेटरी अमीन मेमन की क़ियादत में ताजिरों की एक बड़ी तादाद ने मार्केट चौक पर एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी धरने से बात करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने ताजिर दुश्मन पॉलिसी इख्तियार करते हुए छोटे दुकानदारों पर भी 3 से 6 हज़ार रुपए का बिजली के बिलों में टैक्स लगा दिया है। हुकूमत ने ये छोटे ताजिरों का कत्लेआम किया है, इसे हम नामंजूर करते हैं। ये हमारी आवाम, आज सारे ताजिर, ये दुकानदार, सब दुकानदार ये बाहर खड़े हैं। सेल टैक्स मंजूर है, सेल टैक्स मंजूर है, तो ये हम सेल टैक्स नामंजूर है। वापडा का बिल हम देना चाहते हैं और देते आए और देते रहे और देते रहेंगे। इनका मकसद यही है कि जो सेल टैक्स इन्होंने गवर्नमेंट ने लगाया है छोटे दुकानदार पे, जो सरासर ज्यादती है, वापडा का बिल हम भरना चाहते हैं, भर रहे हैं। कोई हमारे पे बाजुल आधा कोई भी टैक्स नहीं बाकी है, इसके बावजूद भी इन्होंने हमारे फीडर काट दिए हैं। ताजिरों की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज में शामिल छोटे बड़े ताजिर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी करते रहे और ताजिर दुश्मन टैक्स को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा भी करते रहे। कैमरामैन अवेज मलिक के साथ मोहम्मद शहजाद खान, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर खास। बिहाड़ी में अंजुमन ताजरान ने हुकूमत की जानिब से फिक्स सेल्स टैक्स इकट्ठा करने के लिए बिजली के बिलों में हर दुकानदार को 6,000 रुपए टैक्स डालकर वसूल करना शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी मुमताज, बताइएगा कि अंजुमन ताजरान का क्या कहना है? जी, आज हम तमाम ताजर ये जो गवर्नमेंट ने जालमाना टैक्स बिलों में 3-3 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये लगाए हैं, उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और हम इस मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि ये इसे फिलफौर जो है इसे ख़त्म किया जाए। इरशाद हसन भट्टी, सीनियर वाइस चेयरमैन अंजुमन ताजरान पंजाब और यहाँ सदर हूँ मैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान बिहाड़ी का। तो आज हम यहाँ अपना पुरअमन एहतजाज हुकूमत वक्त के पास रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि आपने बिजली के बिलों पर जो जालमाना टैक्स हम पर लगाया है। बहावलपुर में अंजुमन ताजरान सड़कों पर निकल आए, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स नामंजूर करते हुए एहतजाजी रैली निकाली। इसके बाद चौक फवादपुर पर धरना दिया और हुकूमत से टैक्स खत्म करने का मुतालबा करते रहे। बहावलपुर अहमदपुरी गेट पर अंजुमन ताजरान ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की, जबकि एहतजाजी मुजाहरा किया। ताजरान ने बिजली के बिलों में इजाफा नामंजूर करते हुए चौक फवारा तक रैली निकाली, जिसमें हुकूमत से यही मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स आयद किए गए हैं, उन्हें खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो महंगाई ने आम आदमी का जीना दुभर कर रखा है, दूसरी जानिब बिजली के बिलों ने कमर तोड़ महंगाई कर रखी है और इसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि इसको फौरी वापस लिया जाए। जबकि नारेबाजी करते हुए वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 780वें सालाना उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात उरूज को पहुंचना शुरू हो गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अयूब चावला से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सिलसिला चिश्तिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 780वें उर्स की 15 रोज़ा तकरीबात जो है वो अपने अरूज को पहुंचना शुरू हो गई हैं। मुल्क भर से जो है ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। दीवान मदूद मसूद चिश्ती जो है वो अपनी रवायती रस्मात अदा कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त दीवान उस्मान फरीद चिश्ती साहब मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि रस्मात के हवाले से क्या कहते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा जी हजूर गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का 16 दिन का उर्स जारी और सारी है और किबला दीवान मदूद मसूद चिश्ती साहब जो हैं वो रिवायती रसूमात
जो पौने 800 साल पुरानी है उसको अदा कर रहे हैं और दूर दराज से मुरीदैन जो है वो बाबा जी की बारगाह में हाज़िरी के लिए आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से तमाम रस्मात अदा हो रही हैं। सुबह ख़त्म खाजगान के बाद न्याज तकसीम की जाती है और शाम की रस्म के बाद भी जो है मुरीदों में रिवायती तबरक़ात तकसीम किए जाते हैं। और इस उर्स की जो सबसे बड़ी रस्म है बश्ती दरवाज़े की रस्म, वो इंशाअल्लाह इंग्लिश की 4 तारीख को और इस्लामी महीने का 5 मुहर्रम को बाद नमाज इशा जो है वो खोली जाएगी और लाखों की तादाद से जो मुरीदैन हैं वो दुनिया से आकर उस दरवाज़े से गुजरने की सादत अता करेंगे। और 10 मुहर्रम के बाद जो है 10 मुहर्रम को गुस्ल देने के बाद दरवाज़ा 40 रोज़ के लिए शोहदा करबला की याद में बंद कर दिया जाएगा और रस्म चेलम के बाद जो है दरवाजे को खोला जाएगा। जैसा कि आपने दीवान साहब की बात सुनी, इनका यही कहना है कि 5 मुहर्रम हराम को बश्ती दरवाजे की कफल कुशाई की जाएगी। उसके लिए उसके बाद जो है दरबार शरीफ के मेन दरवाजे को जो है 40 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। जी सियालकोट में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अवामी सहूलियात के लिए नादरा एग्जीक्यूटिव सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताह के मौके पर साबिक़ मेयर तौहीद अख्तर, डिप्टी मेयर चौधरी बशीर, चेयरमैन यूनियन काउंसिल मुजफ्फरपुर चौधरी नवाज भट्टी भी इस मौके पर मौजूद थे, जबकि डायरेक्टर जनरल नादरा पंजाब मेजर रिटायर्ड सकलैन अब्बास बुखारी ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को ऑफिस का विजिट करवाया और मुख्तलिफ शोबाजात के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर साबिक़ मेयर सियालकोट चौधरी तौकीर अख्तर, साबिक़ डिप्टी मेयर चौधरी बशीर अहमद, सिटी सदर PP 37 चौधरी नवाज भट्टी, कोऑर्डिनेटर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और ख्वाजा टीपू सुल्तान राना वहीद, ज़िले इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चौधरी कैसर भट्टी भी हमरा थे। डिफेंस रोड पर कायम नादरा सेंटर बैक वक्त हज़ारों शहरियों को सहूलियात देने की काबिलियत रखता है। ख्वाजा आसिफ ने नादरा सेंटर में मौजूद तमाम सहूलियात का जायजा लिया और कलील मुद्दत में मंसूबे की तकमील पर सराहा। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर ने रेस्क्यू सेंटर कैरोड़ पक्का का दौरा किया, स्टेशन का तफसीली मुआयना किया, रेस्ट ऑफ कर्नाटका के पेशेवराना सलाहियतों का जायजा भी लिया। आपको बताएं कि कैरोड़ पक्का स्टेशन पर मौजूद एम्बुलेंस का मुआयना किया, इसके साथ साथ फायर व्हीकल का मुआयना किया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद की तारीफ की और कहा कि डिस्ट्रिक्ट लोधरा में रेस्क्यू 1112 की कारकर्दगी बेहतरीन है, जिसका क्रेडिट डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद को जाता है और इनके साथ ही उनकी टीम भी काबिल तारीफ है। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर का इस मौके पर कहना था कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद और उनकी टीम की बदौलत रेस्क्यू स्टेशन कैरोड़ पक्का रीजन में पहले नंबर पर है, जिसकी कारकर्दगी बेमिसाल है। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद की कारकर्दगी को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। खुली कचहरी के हवाले से आपको बताएंगे। खुली कचहरी का मकसद अवामी मसाइल एक छत तले हल करना है। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी जियाउल्लाह ने नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ रेनाला खुर्द से गुफ्तगू की है। जी वखास, मजीद तफसीलात क्या हैं, क्या कहना था असिस्टेंट कमिश्नर का, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुर्द, जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की खसूसी हिदायत पर खुली कचहरी का इनेकाद किया। आइए उनसे बात करते हैं। जी, अवामी खिदमत का जो जज्बा है उसको सामने रखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो हिदायत है उसके मुताबिक हम हर माह की पहली और दूसरी तारीख को खुली कचहरी का इनेकाद करते हैं और इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये होता है कि जो भी मसाइल हैं लोगों के, वो एक ही छत के नीचे सुने जा सके। इस मौका पर हमारे जितने भी महकमे माल के अफसरान होते हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद होते हैं कि जो साइल होते हैं उनको जगह जगह जो दफ्तर हैं उनके धक्के नहीं खाना पड़ते, एक ही छत के नीचे उनको सारे मसाइल का हल मुहैया किया जाता है और इससे जो उनके मसाइल हैं वो जल्दी हल हो जाते हैं और इससे कह लें कि उनको एक स्पीडी जस्टिस जो है वो मुहैया किया जाता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि उनका कहना है कि खुली कचहरी का मकसद अवामी मसाइल को एक छत तले हल करना है। जी, खानपुर में खुफिया तौर पर पसंद की शादी करने पर लड़की के वर्षा दूल्हे की मूछें और भवें काट दी और मुंह काला करके रस्सियों से बांधकर तशद्दुद किया। पुलिस ने अपनी अदालत लगाने पर लड़की के बाप और कजन को गिरफ्तार कर लिया है। खानपुर की बस्ती वाही हजरत में जुल्फिकार अली ने अपनी खालाजाद से आपदा से एक माह कबल खुफिया तौर पर पसंद की शादी की। बीवी ने कहा कि अब मेरे वालिदैन को राजी करने आ जाओ। दूल्हा जैसे ही दुल्हन के घर पहुंचा तो दुल्हन के वर्षा ने तशद्दुद का निशाना बनाया और रस्सियों से बांधकर मूछें और भवें काट कर मुंह काला कर दिया। मुलजिमान ने अपनी अदालत लगाकर इंसानियत सोच तशद्दुद करने के इल्जाम में लड़की के बाप और कजन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया।
चनियोट में थाना कोट वासफा पुलिस की मुबैना तशद्दुद से एक शख्स जाँ बाग हो गया। लवाहिकीन ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया है। लवाहिकीन के मुताबिक पुलिस ने नौशहर और उसकी बीवी को गिरफ्तार करके थाने ले गई, जहां नौशहर की बीवी को छोड़ दिया गया। नौशहर को छोड़ने के लिए भारी रिश्वत तलब की गई। रिश्वत न देने पर नौशहर पर तशद्दुद किया गया, जिससे नौशहर की मौत वाक़या हो गई। नौशहर की मौत वाक़या होने से पुलिस नाश घर छोड़कर चली गई। लवाहिकीन ने पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से वाक़े का नोटिस लेकर इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। पुलिस के मुताबिक रात तबीयत खराब हुई थी। अहले खाना को इस हवाले से आगाह किया गया था। ये कल सुबह 8-9 बजे शबाई नहीं फत, लेकिन कोई लेडीज पुलिस नाल नहीं नशे की शिकायत है। बाद मियाँ गया वो पेश हो गया, इन वापस घर में भेज दिता ने। रात से तशद्दुद करते रहे, सुबह मोए ने घर सट गए। इसी अल्लाह वास्ते करके हाथ जोड़ते हैं कि ये निक्के निक्के बच्चे ने कोई वाली वारिस ने इंसाफ दिता जाए। घोटकी के इलाके मीरपुर माथेलो के करीब सैयदपुर में मुबैना तौर पर नौजवान कत्ल कर दिया गया है। निसार अहमद बोहर ने वालिद ने कहा कि निसार अहमद घर के बाहर गली में मौजूद था कि अल्लाह बख्श को इमदाद को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया गया, जिसे नाजुक हालत में रहीम यार खान अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में दम तोड़ दिया। वर्षा के मखतून ने लाश को SSP घोटकी के बाहर रखकर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया, जबकि एहतजाजी धरना ताहाल जारी है। मंचनाबाद में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। मंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज में मुसलसल चोरी की दूसरी वारदात पेश आ गई है। मंचनाबाद की सब तहसील मंडी सादिकगंज मेन बाजार में मुसलसल चोरी की दूसरी वारदात CCTV फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली है। CCTV में देखा जा सकता है कि दो नामालूम चोर छत फाड़कर हाजी आबिद मोबाइल शॉप में दाखिल होते हैं, मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। दूसरी वारदात मलिक आसिफ जनरल स्टोर पर हुई, जहां चोर नकदी कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मलिक आसिफ जनरल स्टोर से चोर जाते हुए CCTV कैमरे और डिवाइस भी साथ लेकर गए। चोरों का दोनों दुकानों पर चोरी की वारदात का तरीका एक ही तर्ज का है। अंजुमन ताजरान ने RPO बहावलपुर और DPO बहावलनगर से मुतालबा किया है कि चोरों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। पतोकी में डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार हो गए। थाना सदर फूलनगर पुलिस की राहजनी की वारदात में मुलव्वस डकैत गैंग के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की गई है। गुलाम हसन उर्फ नाटू डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से लूटी गई 2 लाख रुपए की रकम निकाली गई। 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और असलहा भी बरामद किया गया। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश फूलनगर और उसके गिरदनवा में 1.5 दर्जन से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया। मजीद तफ्तीश की जा रही है। DPO कसूर सुहेब अशरफ ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना सदर फूलनगर पुलिस को शाबाशी दी। कोटरी के इलाके टेलीग्राफ में मकीनों ने बासर अफराद की जानिब से गंदा पानी इमाम बारगाह और घरों की तरफ छोड़ने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे दीदार अली मल्लाह की इस रिपोर्ट में। कोटरी के इलाका टेलीग्राफ में जहां इलाके मकीनों ने एक बासर के खिलाफ एहतजाज किया है कि उसकी ज़मीन से जो है पानी घरों की तरफ छोड़ा जा रहा है। मजीद जानते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है। जी देख रहे हैं कि पीछे हमारे पानी का ढेर लगा हुआ है। बरसात का पानी जो था वो पहले मोटरों से निकाल दिया गया है। ये रात को फिर गंदा पानी छोड़ा गया। हमारे ये हर मुसीबत बनी। हमारे घरों को तकलीफ है, हमारे बाहर को तकलीफ है। हमारा बैल भाई जो भी है बुजुर्ग यहाँ से नहीं गुजर सकता। हमने DC साहब को भी बोला, SP को भी बोला, लेकिन कोई अमल उस पर नहीं हो सकता। हम परदों एहतजाज करते हैं कि हमारे मसले को हल किया जाए। से आ रहा है पानी, खेती करने वालों का काम है। ये सारा शाही पाड़े का पानी इधर उतरता है खेती के अंदर। खेती वाला हमारे लिए आजाब बला के रखा हुआ। सैयद मुहर्रम अली टेलीग्राफ कॉलोनी से इस पानी से हमारे को बहुत तंगी और बहुत परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से हमारी माएँ बहनें भी रास्ते से नहीं गुजर सकती हैं और हमारे एहले मल्ला के अंदर जो दीवारें हैं वो भी इस पानी की वजह से मुतासिर हुई हैं। ये पानी इधर से घूमते हुए सीधे मरकजी इमाम बरगाह हदर काज़मीन सारा पानी उसके अंदर जाके खड़ा होता है। ये हमारी इबादत गाह है। अभी हमारे इबादत के दिन है। मेहरबानी खुदारा प्लीज़ मेहरबानी DCO साहब हमारी मदद कीजिए। हम थाने में भी गए, SSB ऑफिस भी गए, टेलीग्राफ थाने में भी दरखास्तें दी हैं। अभी तक हमारी दरखास्तों के ऊपर या हमारे कहने के ऊपर कोई भी अमल नहीं हुआ है। खुदा गंदा पानी, ये गंदा पानी, ये गंदा पानी।
ये बासर लोग हैं, उन्होंने हमारे पास फिर पानी खोला है, ये पानी आ गया है, सारी गली जो है गंद हो जाती है। आगे इमाम बारगाह है, इमाम बारगाह में पानी चला जाता है, गलियां हैं, यहाँ पे कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई औरत यहाँ पे घूम नहीं सकती। हमारे साथ इधर बहुत मसला है। हमने एसपी साहब को बोला है, जो इधर के बना अहदेदार हैं आला, हमने उनको बोला है। हम डीसी साहब से अपील करते हैं कि आएँ, खुद देखें और हमें इस गंद से जान छुड़ाएं। ये पानी खड़ा हुआ है, इसमें से मच्छर हैं, मक्खियाँ होती हैं, बहुत बीमारी आती है, बदबू हो गई है, पूरा मोहल्ला इससे परेशान है। मेहरबानी करके हमारा यही मुतालबा है कि इस पानी को यहाँ से कैसे भी करके खारिज किया जाए। जी, आपने इलाका मक्किनों की बात सुनी। उनका कहना था कि रोड और रस्तों के साथ साथ इमाम बारगाह में भी गंदा पानी जो दाखिल हो चुका है। हम आला कौम से अपील करते हैं कि फिलफौर नोटिस लिया जाए। कैमरा टीम के साथ दीदार अली मला, मेट्रो न्यूज़, कोटरी। उमरकोट में गर्मियों की तातीलात के बाद स्कूल खोल दिए गए। स्कूलों के बाहर मौजूद बारिश के पानी निकासी न होने के खिलाफ अहले मोहल्ला ने एहतजाज किया है। हुकूमत सिंध और जिला इंतजामिया के रेन एमरजेंसी के दावे सिर्फ कागजात और AC ऑफिस तक महदूद होकर रह गए। अमली काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गर्मियों की तातीलात के बाद स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन स्कूलों में खड़ा बारिश का पानी निकाला ना जा सका, जिसके बायस तालीम के उसूल के नन्हे मासूम मुस्तकबिल के बीमार बच्चे बारिश के खड़े पानी में चप्पलें हाथों में उठाए स्कूल जाने पर मजबूर हैं। समड़ियाल तक खारिया मोटरवे के काम का संग बुनियाद रख दिया गया है। काम का आगाज गुजरात के इलाके भगवाल से किया गया है। मोटरवे का यह हिस्सा 69 किलोमीटर तवील होगा। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 2 बरस में मुकम्मल किया जाएगा। सियालकोट से खारिया तक बनने वाली इस मोटरवे पर 5 इंटरचेंज दिए गए हैं। मोटरवे पर 2 टोल प्लाजे और 1 सर्विस एरिया भी मौजूद होगा। मोटरवे की तामीर वसी 4 लेन पर मुश्तमिल होगी। इस मंसूबे पर 27.32 अरब रुपए की लागत आएगी। मोटरवे पर 5 फ्लाईओवर्स भी तामीर किए जाएंगे। मोटरवे बनने से सयाहत को तरक्की मिलेगी और बाहर से डॉलर आएंगे। खारिया मोटरवे की तकमील से न सिर्फ मुसाफिरों की आमदोरफ्त में आसानी होगी, सनतों में तैयार होने वाली मसनूआत को न सिर्फ अंदरून मुल्क नकल व हरकत बल्कि बरामदात के लिए भी बंदरगाहों तक का रसाई भी आसानी से मिल सकेगी।